Yogah Karmasu Kaushalam. Very warm welcome to dear all participants. Good afternoon all. Welcome to our STC course of National Education Policy. And today we have the eminent personality Professor Bharat H. Joshi sir with us. He is from uh, Department of Education, IASC, Faculty of Education, Gujarat Vidyapit, Ahmedabad. And his present designation is Senior Professor since 5 December 2016. Head, Dean and Director, Faculty of Education, IASC. In charge Registrar, Gujarat Vidyapit, Ahmedabad. Academic experience is 33 years of vast experience, including 8 years as a school teacher, 9 years as a lecturer, 3 years as a reader, and 10 years as a professor. And his administrative experience is directed the IASE and College of Education, Gujarat Vidyapit, for 3 years, 2008 to 2011. Nominated trustee of Gujarat Vidyapit since February 2018, in charge registrar since May 1, 2019. And he is recognized as a PhD guide. 12 students awarded PhD degree, 7 students are registered. And he dissertation guided 102. Subject of study, work specialization, education specialization, and work of teaching, research, and extension in educational technology, methodology of research, NITELM, NITELM, and teacher education. Publication number of books, 9 books he has published. Paper in national and international journals, 89. So we have that this level of very knowledgeable and experienced resource person we have. So dear all participants, you will get the great knowledge after this 1.5 hours. So thank you very much. Over to you, Dr. Bharat Joshi sir. Okay, thank you, Roshi bhai. So as I am told that today the topic is NEP 2020. National Education Policy 2020 is not a new topic for us, because as the release has already passed 2 years, more than 2 years, because on 29th July 2020 it was released. Now 2 years and a month are completed. So it is not a new thing for us who are already engaged in the academic field. We all know what is there in the document, because it is a very small document of about 60 pages and easily available on the website of Ministry of Education in Hindi and English both. So it is not a new matter of discussion. But the way we look at the document may be new. And as I can see, we are about 83, more than 80. So together we can have a new vision from the from our discussion about the this document. So as I am the resource person today, invited as a resource person, but I don't feel myself a resource person, because we all are teaching, we all are learning, and I am also in the same boat with you. So we will together learn something from this 1.5 hours. It will, I think, be fruitful for us, mutually fruitful. So I am not here to teach anybody. I am to learn here from you. And so I expect you to participate actively, as it is a live session. So I have
one question for you to start the session. What is there in this document, New Education Policy 2020 document, that you were practicing? Is there anything? Which is being practiced by you before it was released? ऐसा कुछ इस डॉक्यूमेंट में है जो डॉक्यूमेंट के आने से पहले हम उपयोग में ले रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसा कुछ? डॉक्यूमेंट पढ़ के हमें ऐसा लगे कि अरे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है, ये तो हम कर रहे थे, ऐसा कुछ आपको उस डॉक्यूमेंट से मिला है? आपने जो भी एनईपी 2020 के बारे में सुना हो, पढ़ा हो, उससे आपको लगा हो कि ये जो चीज थी जो हम कर रहे थे, इट इज रिफ्लेक्टेड इन द डॉक्यूमेंट ऑफ एनईपी 2020, ऐसा कुछ आपको लगा हो? सर, मैं जिस कोर्स में पढ़ाती हूँ वह हम लोग काफी मल्टीडिसिप्लिनरी ऑलरेडी थे, बट आई थिंक देयर इज अ जी। स्कोप स्टिल इन मेनी कोर्सेज टू मेक इट मल्टीडिसिप्लिनरी। तो वो एक चैलेंज है हर कोर्स को किस तरीके से हम मल्टीडिसिप्लिनरी बना सकते हैं। बट ऑफ कोर्स टीचिंग लर्निंग वाज बीइंग डन। देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू पॉइंट्स इन एनईपी लाइक द डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्री, मल्टीपल एग्जिट एंट्री, which is something really new for me. Right. So, what kind of multidisciplinary facilities you had before this document? Sir, I teach at a course which is called as Social Management. I teach at Central University of Gujarat, and Social management. in BA MA integrate. Yes. So we have a blended course on social work, sociology, as well as management. Across 5 years, we are dealing with a majority of these courses, and plus training on field as well. So social management itself is a multidisciplinary title of a course. Social Yes, sir. management. You are applying management. And management is applied here. Management is a Yes, sir. discipline. Yes. Right. Okay, so one thing is that multidisciplinary practice was there before this document, right? But जैसे इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है उस स्वरूप से शायद नहीं होगा। आपके यहाँ जो सोशल मैनेजमेंट का मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है वो एक ही डिपार्टमेंट हाँ जी में सर, चलता कोशिश होगा। तो वही है पूरा अभी। हाँ, we have been trying to, and we are all specialists in the same discipline and trying to bring about applied view of the course, so that students benefit from all the disciplines which are to be delivered. Right. आप एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट करके कुछ ऐसा करते हैं क्या? नहीं सर, What is the हमारे nature? सेम डिपार्टमेंट में ही अलग अलग डिसिप्लिन से फैकल्टी हैं। जैसे मैं मैनेजमेंट से हूँ, मेरे साथी जो हैं वो सोशल वर्क से हैं, सोशियोलॉजी से हैं, इंग्लिश से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं। तो और कोलैबोरेशन हम कई बार इंग्लिश फैकल्टी से करते हैं, क्योंकि इन हाउस इंग्लिश फैकल्टी शायद इकोनॉमिक्स फैकल्टी इतनी नहीं हो, लेकिन इन हाउस हमारे पास सोशियोलॉजी और सोशल वर्क मैनेजमेंट फैकल्टी तो है। और इस डॉक्यूमेंट में जो कहा गया है न्यू पॉलिसी में, एनईपी 2020 में, उसमें क्या अंतर लग रहा है? आपको कुछ करना पड़ेगा मल्टीडिसिप्लिनरी करने के लिए या यही चलेगा? सर, इस डॉक्यूमेंट पे शायद कोलैबोरेशंस पे बहुत वेटेज दिया गया है। सो इफ वी कैन मेक इट मोर डाइवर्स फॉर द स्टूडेंट्स टू मेक मोर चॉइसेस, तो हम लोग उसमें और ज्यादा चॉइसेस उनको इनबिल्ट करके दे सकते हैं, यदि हम और इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट कर पाए।
और किसी ने ऐसा कुछ महसूस किया हो? आप ये लिटी डेनिस जी, ऐसा है ना आपका नाम? जी। और वेयर डू यू वर्क? कहाँ पर काम कर रहे हो आप अभी? Sir, I work at Central University of Gujarat, Gandhinagar. तो बाकी के जो 90 लोग हैं, उनको लगता है कि एनईपी 2020 में जो भी है वो सब कुछ नया है. Nobody is practicing anything. अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप में से ये डॉक्यूमेंट न पढ़ा हो ऐसा कोई है? अगर है तो ये डाउनलोड करके पढ़ लेना चाहिए. तो अब एक दूसरा प्रश्न है जिसका जवाब सभी के पास होना चाहिए कि ये पॉलिसी में नया क्या है. व्हाट इज न्यू इन दिस पॉलिसी? पहले तो नया कुछ है? इज देयर एनीथिंग न्यू? तो जैसा कि हमने बोला, मीन मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स जो है वो शायद सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी इस पॉलिसी में. प्लस होलिस्टिक एजुकेशन पे जितना वेटेज दिया है, a lot of that will benefit students. Students will benefit from credit transfer. हाँ, अंजलि जी. Yeah. जी, pardon? Will you please repeat? What did you say? Students will benefit from credit transfer. Credit transfer, right? ABC. Yeah. Academic Bank of Credit, Yes. right? So, but will you throw light on this, how it will be done? Because this is my query also. Ki if a first year student is says studying in our college, we have 25 credits, right? Okay. We provide 25 credits. But probably in other colleges, it may not be the same. So, is there a parity in new education policy regarding the total number of transfer of credits? So that is my question also. Ki parity hai, to then we can transfer it. Because I am in an MBA institute and we have 25 credit per semester. Okay. So by the time student does a MBA, okay, 100 credits we give. So 1 year 50 credits. So if a student does first year from our college and if he shifts to the other college, okay, we can transfer 50 credits. But whether the other college has the same number of credits, that needs to be at par. Right. So in this policy, whatever I have read, the number of credits is not mentioned. Okay, sir. So please, sir, if you can throw light on that aspect. I have noted your query. We will address it. Okay, okay. Thank you, sir. And it is not necessary to address by me. Any of you can also participate and reply. I will speak only when you are not speaking. At least 2 persons are live in this session, except me. Karabi Devi, do you want to say anything? You are muted. Karabi Devi, your mic is muted. जी सर. हाँ सर. सर मेरा डिपार्टमेंट हिंदी है और मैं असम की नौगांव कॉलेज में सर एसोसिएट ऑफिसर हूँ, डॉक्टर करोगी देवी. सर प्रिंसिपल सर ने सर हम लोगों को जो ये एनईपी 2020 का तो सर सिलेबस बनाने के लिए हम लोगों को कहा था. तो ये सर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो सर डिप्लोमा कोर्स के लिए जो सर सर्टिफिकेट जो दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को, तो डिप्लोमा कोर्स में सर हिंदी में सर कौन कौन से मतलब वस्तु आएंगे सर सिलेबस में? जैसे हम लोगों ने सर हिंदी पत्रकारिता का एक पेपर और हिंदी डीटीपी का यहाँ एक मतलब कोर्स रखा है, क्योंकि यहाँ पे असम में सर हिंदी डीटीपी का बहुत प्रॉब्लम है. मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है डीटीपी करने में ही, इसलिए सर वो भी हम लोगों ने सिलेबस में रखा है. तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि हिंदी डीटीपी और ये पत्रकारिता को सर हम अगर डिप्लोमा कोर्स 1 ईयर जो सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा, अगर कोई 1 साल मतलब पढ़ के कोई मतलब ये कोर्स कंप्लीट करना चाहेंगे, तो ये सर ठीक रहेगा कि नहीं, पत्रकारिता और हिंदी डीटीपी का जो कोर्स है? पहले आप ये पत्रकारिता वाला कोर्स नहीं चलाते थे?
नहीं सर, चलाते थे, वो तो 5th सेमेस्टर में थे, लेकिन अभी सर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स अगर उन लोगों को 1 साल के बाद पढ़ने के बाद का अगर डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये पत्रकारिता और ये हिंदी डीटीपी वाला कोर्स अगर रखेंगे तो वो लोग 1 साल पढ़ने के बाद अगर कहीं थोड़ा वो काम कर सकेंगे अपने रोजगार के लिए। नहीं, ये तो मल्टीपल एग्जिट वाली बात आप बता रहे हैं ना। जी सर, हाँ, लेकिन वो भी तो सर मतलब हो सकता है कि कोई 1 साल पढ़ के ऐसा मन में आए कि और नहीं पढ़ेंगे, कोई दूसरा काम कर लेंगे। इसीलिए तो वो दिया है। जी सर। हाँ, 1 तो साल सर के बाद जी सर, हाँ, तो exit इस हो हिसाब से सकते सर, हैं। हाँ सर, तो इस मतलब इस हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा सा सिलेबस बनाया है, क्योंकि सर हिंदी में तो इतना टेक्नोलॉजी की बात या फिर वो साइंस जैसा तो सर इतना स्कोप है नहीं कि अगर फर्स्ट सेमिस्टर में हम लोग अगर दूसरा से अगर रामचरितमानस रखेंगे तो वो लोग 1 साल के बाद उसको लेकर सर क्या मतलब ऐसा काम तो वो लोग शायद नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप जो पढ़ाते हैं उसी के आधार पर उसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री मिलेगा ना। जी सर, हाँ। हाँ, तो जब आपने कोर्स फ्रेम किया है, सिलेबस जब बनाते हैं, तो उसमें आप जिसे ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं वो रखते हैं, उसी के आधार पर वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा काम करेगा। नहीं सर, मतलब वो ये हम लोगों का कॉलेज में जब मतलब जो मीटिंग रखा गया था डिपार्टमेंट के हेड के साथ, तो प्रिंसिपल सर ने हम लोगों को बताया बनाना चाहिए कि बच्चे 1 साल पढ़ के थोड़ा मतलब अगर पढ़ के वो लोग छोड़ देना चाहेंगे तो उस कोर्स के हिसाब से उनको कुछ काम मिले। तो हिंदी में सर मेरे हिसाब से तो इतना स्कोप है नहीं कि 1 साल पढ़ने के बाद ही उनको कुछ काम मिलेंगे। नहीं, ये नहीं तो सर मैं आपने वो जो अध्यापन किया है उस वक्त जो निष्पत्तियां आपने तय की होगी जी, जी। उसी पर ही आधारित होगा। अच्छा, जी सर, हाँ। हम्म क्योंकि अधिगम निष्पत्ति आपने पहले से ही तय की हुई है ना। नहीं सर, लर्निंग आउटकम तो आपने डिसाइड किया है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबका तो ऑप्शन रखना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं, मानो 1 साल के बाद कोई एग्जिट कर देता है, जी सर, तो हाँ। 1 साल में उसने कितनी निष्पत्तियां जी सर, हाँ। पाली होगी, जी सर। कितने लर्निंग आउटकम अचीव किए होंगे, जी, जी सर। वो तो तय है। जी सर। उसी के आधार पर वो परफॉर्म कर पाएगा, जी सर, हाँ। उसी के सर आधार और पर हाँ, उसे कोई ना कोई जो भी जॉब है वो मिलेगा। हाँ, वही सर, वही सर, वही। हाँ, तो वो तो इट ऐसा इज ऑलरेडी डिसाइडेड, पहले से ही तय है। जी सर। तो अब मानो आपने ये देखा है कि 1 साल के बाद अगर कोई एग्जिट करता है, सर्टिफिकेट लेता है, 2 साल के बाद वो डिप्लोमा लेता है, जी सर। और उसे कहीं पर मानो पत्रकारिता का ही कोर्स है, 2 जी साल के सर। बाद वो डिप्लोमा लेके जब बाहर निकलता है तो उसे मान लो कोई अखबार में जी सर, हाँ। काम चाहिए, तो जी, जी। उसके लिए उसको कौन सी निष्पत्तियां सिद्ध करनी होगी, वो आपको अपने कोर्स में रखनी होगी। जी सर, हाँ। हम्म सर ऐसे फिलहाल ही तो हम लोगों का कॉलेज तो फिलहाल हम लोगों का कॉलेज तो अभी ऑटोनोमस है सर। ये हम्म 26 में ये हम लोगों का आसाम के जो गवर्नर है उन्होंने ये यूनिवर्सिटी डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया है, तो 26 में ये हम्म फुलफिल हो भी जाएगा। सर आपसे मुझे और एक बात ये जाननी थी सर, अगर हम लोग 4 ईयर डिग्री कोर्स करने के बाद जो क्रेडिट हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे मेरे हिंदी डिपार्टमेंट में, तो उसके बाद सर ऐसा नहीं होगा कि अगर जिस यूनिवर्सिटी में वो 1 साल के लिए आफ्टर 4 ईयर डिग्री कोर्स वो 1 साल के यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाएगा, तो उनको भी सर ऐसा नहीं होगा कि हमारे साथ थोड़ा सा कुछ वो लोग मतलब ये अगर हम लोगों के साथ उन लोगों का कोई टाई अप नहीं रहेगा तो हम लोग जो क्रेडिट पढ़ाएंगे अगर वो लोग वही क्रेडिट अपने सिलेबस में रखेंगे तो बच्चों को सर बेनिफिट होगा या नहीं, मुझे सर नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन आ रही है मन में, इसलिए आपको मैं पूछ रही हूँ कि हम 4 ईयर डिग्री कोर्स में जो क्रेडिट बच्चों को पढ़ाएंगे, जो विषय रखेंगे, और उसके बाद में वो पास करके अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे तो उसका क्रेडिट में या यूनिवर्सिटी के उस क्रेडिट में वही सिलेबस होगा, तो फिर क्या होगा? नहीं, आप उसे क्रेडिट किस आधार पर देंगे, उसने जो पढ़ाई की है उसी के आधार पर, नहीं सर, सिलेबस तो उसी का विषय तो पूरा है। कंटिन्यूएशन होगा ना। जी, जी, जी। हाँ, नंबर ऑफ क्रेडिट्स से कुछ नहीं होता है,
नंबर ऑफ क्रेडिट्स उसे जो मिला है वो किस आधार पर मिला है, किस चीज का है वो क्रेडिट, वो देखना चाहिए। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। और किसी को कुछ नया लगता हो इस पॉलिसी में, ऐसा है? दिलीप मनोहर जी। सर जी। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये नई जो पॉलिसी है एनईपी, उसमें रीजनल लैंग्वेज पे ज्यादा ट्रेस किया हुआ है। रीजनल लैंग्वेज और खासकर मदर टंग। मदर टंग। ओके सर, सही है। आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए था, ये जरूरी होना है? चाहिए, होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हाँ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जैसे आप मदर टंग में जैसा समझ सकते वैसा दिक्कत आती बच्चों को, तो मदर टंग नई पॉलिसी में आई पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ सर। अभी तो हमारा हायर एजुकेशन ज्यादातर इंग्लिश में चल रहा है। इंग्लिश में मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, बाकी के सब जो वोकेशनल है, ITI वगैरह, वो सब वो इंग्लिश में है। अगर ये सब उनके मदर टंग में पढ़ाएंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। सही है। ओके सर, थैंक यू। उसमें दिक्कत क्या लग रही है आपको? कुछ होगी, मुश्किल होगी कुछ? नहीं, दिक्कत नहीं सर, वो तो आसान होगा, दिक्कत नहीं मदर टंग में पढ़ाने में और अप्लाई करने में। मानो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो तय कर लेती है कि टेक्स्ट, हाँ सर, उसमें सर अब टेक्स्ट बुक वगैरह मटेरियल जो है वो जरा समय लगेगा विकसित करने के लिए, क्योंकि अभी नहीं है वो टेक्स्ट। रीजनल लैंग्वेज में हमें मटेरियल नहीं मिल रहा है। हाँ, मटेरियल नहीं बच्चों को पढ़ने के लिए, और पढ़ा हमको भी पढ़ाने के लिए और उनको पढ़ने के लिए। बिल्कुल। ये कौन बनाएगा मटेरियल? वो एकेडमी से हमको ही बनाना पड़ेगा ना सर। तो NEP में हमारा एक काम है, हाँ सर, डेवलप, सिलेबस डेवलप करना और वो मटेरियल डेवलप करना। तो एक मटेरियल जनरेट करके अपने विषय में रीजनल लैंग्वेज में ISBN लगा के पब्लिश कराओ, जी, तो जी, API भी मिल जाएगा। जी सर, जी सर। इट्स एक स्कोप। मैं आपको ये जो लैंग्वेज वाली बात है उसके बारे में बताऊं। हाँ, जी मैं सर। जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, ये गुजरात विद्यापीठ है। जी सर। अहमदाबाद में 1920 में महात्मा गांधी ने स्थापित की थी। जी सर। उस वक्त इट वाज एस्टेब्लिश्ड विद द विजन दैट, जो हमारा उस वक्त का जो माहौल था, तब तो एक स्वातंत्र संग्राम चल रहा था 1920 में। जी सर। तो गांधी जी ने देखा कि देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजियंस हु हैव स्टडीड इन रीजियनल लैंग्वेजेस। जी सर। क्योंकि ये तो कोई सुविधा थी ही नहीं उस वक्त। जो हायर एजुकेशन था वो 100% इंग्लिश में ही चल रहा था। इंग्लिश में ही था सर, इंग्लिश में था। और जो जरूरी था वो ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले लोगों का वो जरूरी थे। तो राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए ये 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। और उनका स्वप्न तो ये था कि हर रीजन में एक ऐसी विद्यापीठ स्थापित हो जो विविध भाषाओं में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करे और ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण हो। ये पहले से ही उनका विजन रहा था। तो गुजरात विद्यापीठ जब से स्थापित हुई है तब से आज तक गुजराती में ही पढ़ाता है। बहुत अच्छा। हमारे यहाँ प्राइमरी टू PhD गुजराती में ही पढ़ाया जाता है। हाँ, विद्यार्थियों को ऑप्शन दिया जाता है, इफ दे वांट टू परफॉर्म देयर examinations in Hindi or English, they are allowed, but the medium of instruction is गुजराती लैंग्वेज। अच्छा, ये जो स्तर है विविध जो NEP 2020 में दिए गए शिक्षा के स्तर, उसके बारे में कुछ नया आपको लगा है फ्रॉम बिगिनिंग टू
टर्टियरी हायर एजुकेशन लेवल, कुछ इसमें कुछ नया आया है। वो 5+3+3+4 वाला जो दिया गया है उसमें कुछ नया दिखा है जो पहले कभी था ही नहीं, ऐसा कुछ उसमें आपको लगता है? शशिकला जी। जी जोशी सर, आई एम दिलीप काटलिया फ्रॉम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज मांडवी कच्छ। जी सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन तो नहीं है पर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है कि हम अभी उस पॉइंट पे बात कर रहे थे कि भाई मदर टंग पे एम्फेसाइज दिया गया है, रीजनल लैंग्वेजेस, तो मटेरियल सिलेबस उसमें बनेंगे। तो सर, मैं तो अभी साइंस कॉलेज में हूँ और इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूँ, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी उसको मदर टंग में, फॉर एग्जांपल हम हमारी गुजराती की बात करें तो गुजराती में उसको लाएंगे तो सर ट्रांसलेशन आएगा, और ट्रांसलेशन आएगा तो ट्रांसलेशन में ऑथेंटिकेशन का बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। आप जानते ही होंगे कि विच ट्रांसलेशन इज बेटर। आज हमारे पास हमारे इतने शास्त्र है, उसके भी इतने ट्रांसलेशन है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो बाइबल की ट्रांसलेशन की इतनी बड़ी हिस्ट्री है। सो द पॉइंट कम्स दैट विच ट्रांसलेशन एंड हु विल ऑथेंटिकेट देम। और ऑथेंटिकेशन ट्रांसलेशन के साथ एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है इंटरप्रिटेशन का, कि कुछ ट्रांसलेशन आज वैलिड है, 10 साल बाद वो वैलिड नहीं होंगे, 10 साल बाद उसका इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा। तो सर इस बारे में थोड़ा हमें इंफॉर्मेशन दे तो थोड़ा बेटर रहेगा। ये वैसे तो मैंने एक प्रश्न पूछा था, मुझे लगा आप वो उत्तर देने वाले हैं, कोई बात नहीं। देखिए, ये जो ट्रांसलेशन वाली बात है, तो जरूरी नहीं कि हम ट्रांसलेशन ही करें, ये भी एक काम हो सकता है, ट्रांसलेशन भी एक काम हो सकता है। ओके। जिसे हम नॉलेज कहते हैं। आप किस विषय के अध्यापक हैं? इंग्लिश के सर। इंग्लिश जी। हाँ। तो इंग्लिश में मानो जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म आता है। हाँ सर, आता है। तो इट्स अ थियरी। यस सर। तो इस थियरी में जो भी दिया गया है, ये सिद्धांत हम पढ़ाते हैं। हाँ सर। अब उस सिद्धांत में तो हम कोई बदल नहीं कर सकते। नहीं सर। ऐसा ही हर विषय में होता है। मानो सोशियोलॉजी में है तो जो थियरीज है वो तो वही रहेगी। हाँ सर। ओरिजिनल जिसे थियरी का रूप, सिद्धांत का रूप जिसे मिला है वो तो वही रहेगा। हाँ। अब हम क्या करते हैं कि उस सिद्धांत को हम हमारे विद्यार्थियों तक ले जाते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट रिसोर्सेस का उपयोग करते हैं। मानो क्रिटिसिज्म हमें पढ़ाना है, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ाना है, और उसमें हमें लॉन्जाइनस को पढ़ाना है, तो द थियरी ऑफ सब्लिमिटी पढ़ाने के लिए हम अलग अलग जो क्रिटिसिज्म किया गया है, जितने भी थिंकर्स है उसने जो भी दिया है उसका हम उपयोग करके हमारे विद्यार्थियों को ये एक्सप्लेन करते हैं। उसमें हम हमारा कुछ नहीं दे सकते। हाँ सर। तो जो प्रेजेंटेशन होगा वो नया होगा। हाँ सर। विचार तो वही होंगे। हाँ सर। तो जैसे मानो थोड़ी देर पहले जो बात हुई सोशल मैनेजमेंट के विषय में, मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है वो तो बदलने वाले नहीं है, वो तो वही रहेंगे। लेकिन हम प्रेजेंट करेंगे हमारी भाषा में। तो ये जरूरी नहीं कि वो ट्रांसलेशन ही हो। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत ये नामक एक पुस्तक, किताब आपको यूनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माण बोर्ड से मिलेगी। हाँ सर। वो ट्रांसलेशन नहीं है, कई किताबों का उपयोग करके वो लिखी गई है। तो ऐसे मानो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन और फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, हाँ, उसमें नया कुछ देना नहीं है, प्रेजेंटेशन नया होता है। सिद्धांत तो वही होता है, न्यूटन का सिद्धांत जो है वही पढ़ाना है,
लेकिन उसे पढ़ाने का एक तरीका है, वो हर व्यक्ति का अलग है। तो हम हमारे विद्यार्थियों के लिए अपनी भाषा में ऐसा कुछ तैयार करें जिसके आधार पर वो पढ़ाई कर सके। गुजरात में तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। यूनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माण बोर्ड हायर एजुकेशन के लिए ही बना है और हायर एजुकेशन में ऐसे प्रकाशनों के लिए वो तत्पर रहता है और उसमें एक परामर्शन की पूरी सुविधा रहती है। आप कोई किताब तैयार करके उसमें सबमिट करोगे तो वो डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगी, उसका एक रिव्यू होगा और रिव्यू के बाद वो सर्टिफिकेट भी उसमें छपेगा। तो ये एक व्यवस्था है। और जैसे पहले जो दिलीप मनवर जी के साथ जो बात हुई उसमें जो मैंने बताया कि इट्स ए न्यू स्कोप फॉर अस, स्पेशली फॉर लैंग्वेज टीचर्स रहे हैं उनके लिए एक स्कोप बना है जिससे हम ये काम कर सकते हैं, अपनी भाषा में ये काम कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन की जो आप बात बता रहे हैं उसका क्या है, गांधी जी जब सक्रिय थे और उन्होंने कहा कि हमारी भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में, प्रादेशिक भाषा में हमें काम करना होगा, हमें उसी भाषा में पढ़ाई करनी होगी। मातृभाषा से पढ़ेंगे तो ही हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये सब बातें उन्होंने जब बताई तो कुछ लोग जो इंग्लिश में पढ़े हुए थे उन्होंने पूछा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दिलीप भाई क्योंकि आप गुजरात से हैं। हाँ, तो उसमें से एक थे मूलशंकर मोह भट्ट। हाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं तो इंग्लिश में पढ़ा हूँ, मैंने तो पढ़ लिया, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो इंग्लिश का ज्ञान है, आप बता रहे हैं कि इंग्लिश का तो इतना जरूरी नहीं है इंग्लिश। तो गांधी जी ने उनको उत्तर दिया था ऐसे लोगों को कि ये ऐसी बात है ही नहीं, हर भाषा महान है। आपने इंग्लिश में पढ़ाई की है, आप अपने ज्ञान को उपयोग में लेकर जो इंग्लिश में ज्ञान पढ़ा है उसे अपनी भाषा में लाने का काम करें, क्योंकि आपके पास इंग्लिश का ज्ञान है। तो जो ज्ञान हमारी भाषा में नहीं है उसे आप इंग्लिश में से लाइए। आपने शायद मूलशंकर मोह भट्ट का ये जो ट्रांसलेशन वर्क है वो देखा होगा। पूरा जुलेवन गुजराती बच्चों के लिए उन्होंने गुजराती में ट्रांसलेट करके दे दिया है। ला मिजरेबल काफी काम किया है, बहुत ट्रांसलेशंस किए हैं उन्होंने। खुद की किताबें तो है ही लेकिन ट्रांसलेशंस भी है। तो हमारे पास इंग्लिश का ज्ञान है तो हमें जो इंग्लिश में ज्ञान दिया है उसे अपनी भाषा में लाने में सुविधा है। तो हम जानते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश का उपयोग करके हमारी भाषा का जो अध्ययन संपुट है उसे समृद्ध करें। ये काम हमारे लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिख रहा है। हाँ रविंद्र भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? रविंद्र जाधव। यस सर। सर मुझे इसी बारे में थोड़ा सा एडिशन करना था। जैसे आपने बोला लैंग्वेज ट्रांसलेशन, यानी कि अपने रीजनल लैंग्वेज से यदि हम स्टूडेंट को पढ़ाएंगे और स्टूडेंट भी पढ़ेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग 100% ज़्यादा रहेगी। लेकिन क्या इससे इशू बढ़ेगा? जैसे कि अभी नेशनल लेवल पे नेट एग्जाम ली जाती है, स्टेट लेवल पे स्लेट एग्जाम ली जाती है, तो यदि रीजनल लैंग्वेज में मैं पढ़ूंगा तो क्या नेट हर स्टेट में उस लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस होगी? सेकेंडली, यदि मैंने जैसे कि मैंने मेरे लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में पढ़ा हूँ, तो मुझे गुजरात में जाके एज असिस्टेंट टीचर, प्रोफेसर करके जॉब ज्वाइन करनी है, तो मैं वहां पे कैसे ज्वाइन करूं? एक बात मुझे रखनी है, तो ये इश्यू होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में थोड़ा सा अभी ये तो इंडिया में ही प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि गुजरात में मैं गुजराती नहीं समझ पाऊंगा, मैं आंध्रा में जाता हूँ तो वहां की लैंग्वेज में नहीं समझूंगा,
मेरी मराठी लैंग्वेज वहां पे नहीं अंडरस्टैंड होगी। अभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो और ज्यादा दिक्कतें आ सकती। तो बेटर वे इंग्लिश हम रखें और इसके साथ जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है इसमें हम रीजनल लैंग्वेज का भी यूज करें कि जिसके वजह से स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ सके, ऐसे मुझे लगता है। इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्या, इंडस्ट्री का क्या, इसके बारे में उनका क्या वो क्या मायना रखते हैं, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा इसकी रिगार्डिंग, ऐसे मुझे लगता है। सही है। देखिए ये दिक्कत हमें क्यों लग रही है, मेरा जो मानना है वो कि जब हम ये सोचते हैं कि हायर एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमें रीजनल लैंग्वेज ही सीखनी है। दिक्कत यहां से शुरू होती है। ये जरूरी नहीं है। आप थोड़ा पीछे जाके देखिए, जो लोग हमारे यहाँ पूरे रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़े हैं और बहुत अच्छे भारत से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती है ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश आप सीख सकते हैं, कोई भी भाषा आप सीख सकते हैं, किसी भाषा से कोई परहेज नहीं है। ये NEP 2020 में भी नहीं है। उसमें रीजनल लैंग्वेज और खास करके मदर टंग पर जोर दिया गया है, लेकिन और कोई भाषा में काम नहीं करने का उसमें कोई निषेध नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी भाषा का ही हमें अभ्यास करना है तो फिर ये हो सकता है। जैसे मानो गुजरात विद्यापीठ में, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का आपको एग्जांपल देता हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी में हम गुजराती में ही पढ़ाते हैं और हमारे साथ करीब करीब 20 से 25 ऐसे टीचर्स हैं, कम से कम 20 तो होंगे ही, जो गुजराती में पढ़ा रहे हैं और गुजराती नहीं है। एक तो मेरा PhD का विद्यार्थी है, वो जो वहां पर अभी प्रोफेसर है, हमारे साथ ही है। जब ज्वाइन किया था गुजराती का एक शब्द भी नहीं आता था, लेकिन 3 महीने में वो गुजराती बोलता और लिखता हो गया। बोलना भी आ गया, लिखना भी आ गया, समझना भी आ गया। और अभी तो वो गुजराती में बिल्कुल ऐसे पढ़ाते हैं जैसे वो गुजराती ही हो। तो भाषा सीखने के लिए मैं तो एजुकेशन फैकल्टी से हूँ, तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का भी मैंने थोड़ा अभ्यास किया है। वो एक ओसुबेल नामक जो साइकोलॉजिस्ट है, उसने बताया है कि अगर आपको कोई एक भाषा आती है और वो भाषा अच्छे से आती है, तो बाकी जगत की किसी भी भाषा को आप सीख सकते हैं। एक भाषा अच्छे से आनी चाहिए। दिक्कत ये हो जाती है कि जब हम प्राइमरी से ही ऐसे मीडियम में हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं जो उनकी मातृभाषा नहीं है या रीजनल लैंग्वेज नहीं है, जो आसपास में बोली जाती हो ऐसी भाषा नहीं है, तब जाके दिक्कत होती है कि न तो वो मातृभाषा का सही उपयोग सीख सकता है, न जो नई भाषा उसको मिल रही है उसका। तो आगे जाके वो परेशानी में आ सकता है। लेकिन किसी को एक भाषा जो सबसे आसान है सीखने में, वो मातृभाषा है, वो अच्छे से आ गई हो, तो बाकी किसी भी भाषा को वो सीख लेगा। जरूरी नहीं कि बाकी का पूरा अभ्यास वो मातृभाषा में ही करे। हमारे पास ऐसे काफी एग्जाम्पल्स है विश्व में जो पूरे अभ्यास के लिए अपनी ही भाषा का उपयोग करते हो। जैसे मानो जर्मन में जो लोग पढ़ते हैं, जर्मनी में पढ़ते हैं, वो जर्मन में ही पढ़ते हैं। चाइना भी ऐसा एक एग्जाम्पल है, रशिया भी ऐसा एग्जाम्पल है,
जापान भी ऐसा एग्जाम्पल है, काफी देश ऐसे हैं जो अपने ही अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही काम करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो और कोई भाषा न सीखे, हमें वो सीख लेनी है। हाँ हाँ, रीना बेन, आप कुछ बताना चाहती हो? बात कहना चाहती, जब आपने एग्जाम्पल दिया जर्मनी का, स्पेन का, पोर्चुगल या रशिया, चाइना का, सर वहाँ पे उनका रीजनल ही नेशनल लैंग्वेज होता है, एक ही भाषा है, या थोड़ी बहुत अलग डिफ्रेंसिएशन के अलग अलग जोन्स में होंगे विद इन द कंट्री। लेकिन जहाँ तक हमारे देश का सवाल है सर, वो हमारा स्ट्रेंथ मैं मानती हूँ कि हमारे पास इतनी सारी भाषाएं हैं, और वही कहीं ना कहीं एक सवाल आज खड़ा कर देती है कि जब हम ट्रांसलेशन मोड की बात करें तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट multiple languages in India. Keeping that in mind, I think it will become little difficult how to retain to what extent all of them. तो मातृभाषा सर मैं मानती हूँ वो तो घर से ही शुरू होता है, और अनफॉर्चुनेटली आज घरों में मातृभाषाएं बोली अच्छी तरह से बोली नहीं जाती है। वो भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है सर, बहुत दर्दनाक सवाल है कि वी डोंट लव आवर ओन मदर टंग। घरों में ही पेरेंट्स जानबूझ के बोलते हैं या हालात के तहत बोलते हैं, जो भी कारण हो, कि वो भी बच्चों को इम्पार्ट नहीं करते मदर टंग। ऐसी सूरत में एनईपी का जो इम्पोर्टेंट मोटिव है दैट एनहांस रीजनल लैंग्वेज इज अ गुड एफर्ट सर, लेकिन हायर एजुकेशन में खास करके जहां हमें ग्लोबली कॉम्पीट करना है तो शायद सर दिक्कत हो जाएगी इतनी सारी भाषाओं को लेकर। ये सिर्फ सर मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, कोई सवाल है? आप तो बहुत बड़े दिग्गज प्रोफेसर है, आपको लगता है सर क्या वाकई इतने सारे लैंग्वेजेस के साथ हायर एजुकेशन में ले जाना थोड़ा सा दिक्कत होगा सर? देखिए, ये जो ख्याल है कि इतनी सारी भाषाएं हैं, हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज में शायद 22 भाषाएं हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो इतनी सारी भाषाएं और इतने सारे रीजन में बोली जाने वाली ये भाषा है, तो ये प्रश्न हो सकता है, ऐसा हम सोच रहे हैं। मैंने एक जगह पर पढ़ा था, आप में से किसी को इसके बारे में मानो ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन है तो कृपा करके बताइएगा, कि रशिया में करीब 70 भाषाएं बोली जाती है, 70 लैंग्वेजेस रशिया में। यूक्रेन की भाषा और मॉस्को की भाषा अलग है, कजाकिस्तान की भाषा और मॉस्को की भाषा अलग है, और जब वो यूएसएसआर था तब ये सब साथ में ही थे, और हर जगह पर अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई हो रही थी। आज भी वैसा ही है। तो कोई एक ऐसी फॉर्मूला हो जिसके आधार पर हम कम्युनिकेट कर ले, तो बाकी का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ये सब जो दिक्कतें हमें दिख रही है वो हम एकेडमिक फील्ड में ही देख रहे हैं। जिसे चाइनीज नहीं आती है वो भी चाइना से बिजनेस कैसे कर लेते हैं, जिसे तमिल आती ही नहीं है और वो यूपी में रहता है तो वो बिजनेस कैसे कर लेते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। उनको क्यों कोई तकलीफ नहीं हो रही है? तो जिससे हम काम कर रहे हैं वही फॉर्मूला जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं, उसी फॉर्मूला से हम ये पढ़ाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हम पहले से ही ये मानकर चल रहे हैं कि ये तकलीफ होगी, और इसीलिए हम कभी कदम बढ़ाते ही नहीं है। मेरा ये मानना है। हाँ सर, एक्चुअली ये प्रॉब्लम इससे हो गई शायद दिक्कतें, क्योंकि अभी हमने जैसे कि हम हर स्टेट में रूरल एरिया में जाएंगे तो रीजनल लैंग्वेज में ही टीचिंग लर्निंग हुई थी। जैसे कि मैंने मेरा जो एजुकेशन है वो मराठी लैंग्वेज में लिया,
बाद में टीचिंग फील्ड में आने के लिए स्ट्रगल भी किया इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो अभी इसका नहीं क्या, हर कोई बोलता था अंग्रेजी आनी चाहिए आनी चाहिए आनी चाहिए, तो ये माइंड सेट लेके सब चल रहे थे और बीच में फिर से रीजनल लैंग्वेज की तरफ पीछे जाना है। तो बहुत सारे जैसे कि ये प्रॉब्लम है, जैसे कि हम नैक का प्रेजेंटेशन करते तो नहीं, वो अंग्रेजी में ही करना पड़ेगा। तो ये माइंडसेट था। बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग थे कॉलेज में, उनका अच्छा बायोडाटा था, लेकिन बस उनके अंग्रेजी की दिक्कत थी। दे सफरिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट देमसेल्फ। तो ये जो माइंडसेट था, तो इससे पीछे आने के लिए मन नहीं हो रहा है सबका, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जी सर नमस्कार। सर नमस्ते, राम चौधरी। हाँ सर, मी पण मराठीचा प्राध्यापक आहे। मैं मराठी भाषा का अध्यापन कर रहा हूँ जी। और सर मैं ये जो बातें सुन रहा हूँ तो मुझे बचपना याद आया, जो प्राइमरी का स्कूल अपन करते थे एजुकेशन। राइट। और सब मैं महाराष्ट्र से हूँ और हमारे तरफ मराठी में पूरा एजुकेशन होता है, उसके साथ साथ 5वीं क्लास से पहले इंग्लिश में पढ़ाया जाता था। इंग्लिश एक सब्जेक्ट के कारण मेरे बहुत साथी पिछड़ गए। जो 10वीं पहले बोर्ड एग्जाम होती थी, अभी ये नए एजुकेशन पॉलिसी से 10वीं का बोर्ड खत्म हो जाएगा, तो 10वीं के बाद उन बच्चों की सिर्फ इंग्लिश के कारण पढ़ाई छूट गई। मेरी कंडीशन अच्छी नहीं रहने के बावजूद भी मैंने छुट्टियों में कुछ करके ट्यूशन लगाया और इंग्लिश को पास किया सर। आज नया एजुकेशन पॉलिसी को हम दूर से देख के आग की तरह उसको डर रहे। हम यदि उसको पास में जाके क्या है उसकी बारकाई जाने सर, तो बहुत अच्छा है कि उसकी रीजनल भाषा में पढ़ाई करने के लिए किसी को मना नहीं किया गया है। आप महाराष्ट्र के हो तो भी आप फॉरेन की भाषा सीख सकते हो, फॉरेन में जाके अपन मराठी में सीख सकते हैं। आज मराठी के अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन विदेशों में हो रहे हैं, किसी ने उसको रोका नहीं है सर। हमने पॉजिटिवली लेना चाहिए। आज इंग्लिश के कारण बाकी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पिछड़ गए हैं, पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इंग्लिश जब तक उसका पास नहीं होता था वो बाकी सब्जेक्ट पास से होके कोई फायदा नहीं हो रहा था। 10वीं में जो सब्जेक्ट थे उसको मैथ और साइंस तो अपनी मराठी में हो जाती थी, मैथ का भी, लेकिन इंग्लिश का जो सब्जेक्ट था उसको इंग्लिश में लिखना था, इंग्लिश में समझना था, इंग्लिश में पढ़ना था। और वो बाकी काफी बच्चों के कारण काफी बच्चों को जम नहीं पाया और उनका वो एक सब्जेक्ट फेल होने के कारण वो 10वीं की पढ़ाई फेल में छोड़ना पड़ा उन्हें। तो आज ये पॉलिसी आने के कारण यदि अपन कंपलसरी उसको नहीं कर रहे, उसको कुछ ऑप्शन होता है, तो कम से कम वो पास तो होगा। और जो आपने उदाहरण दिया है कि धंधे के लिए, ये सही बात है कि आज महाराष्ट्र में भी बाहर के लोग आके धंधा कर रहे हैं, उनको मराठी उसको पॉजिटिवली लेना है, वो कहीं ब्रेकर बने ये नहीं देखना है हमें कि उससे अपन छलांग कैसे ला सकते हैं, आने वाले पीढ़ी को अपन कितना दे सकते हैं। आज अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि उसको आर्ट के साथ साथ उसको साइंस में भी जाने का मौका मिल रहा है। एक सब्जेक्ट वो करेगा यदि उसको जमता है, या साइंस वाले को एक सब्जेक्ट इधर आर्ट में पढ़ना है तो पढ़ेगा वो, ऐसा मेरा मानना है सर। थैंक यू सर। जी देखिए, कई बार क्या होता है कि डर मन में इतना बैठ जाता है कि हाँ सर बराबर, कोई कुछ नया करने का सोच ही नहीं सकते। पैराडाइम शिफ्टिंग इज डिफिकल्ट, और पैराडाइम बन जाता है जब एक बार हमने कुछ स्वीकार कर लिया किसी चीज का, फिर उसे छोड़ना ये बड़ा मुश्किल का काम है। हमने ये पहले से मान लिया कि ये जो विषय है वो कठिन है, जैसे मैथ्स किसी ने मान लिया कि कठिन है, तो वो अपने आप उस विषय से अलग होता जाएगा। किसी ने मान लिया कि इंग्लिश कठिन है, तो वो अपने आप को उससे दूर लेता जाएगा। अब इसका लाभ किसे होगा? तो इट्स ऑल्सो ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जैसे आपने बताया
कि आपको इंग्लिश में दिक्कत थी, फिर आपने ट्यूशन किया, ट्यूशन लिया और उससे आपने सीख लिया। तो मानो मैं ट्यूशन क्लास चला रहा हूं, तो मैं तो यही बताऊंगा, बार बार पोस्टर लगाऊंगा कि इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं है, आप आइए, हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे। देखिए, मैं बता तो ये रहा हूं कि मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, लेकिन बताने का तरीका जो है वो मेरा वो मार्केटिंग वाला है कि आप घबराइए मत, यानी कि आपको घबराना है, आपके डर से मुक्ति हम दिलाएंगे। आप घबराइए, आप हमारे पास आइए, हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे। तो ये एक तरीके से हमारे मन में बोया जाता है, किसी भी विषय के बारे में ये होता है, और खास करके जो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के बारे में आप देखिए कितना बड़ा मार्केट है, स्पोकन इंग्लिश का इतना बड़ा मार्केट है, इतने क्लासेस चल रहे हैं, इतनी किताबें जिसे पढ़कर आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, ऐसी कितनी किताबें मार्केट में मिल रही है। सो इट्स ए प्योर बिजनेस। हमें ये बताया जाता है कि इंग्लिश जरूरी है, इंग्लिश के बिना आपका काम नहीं चलेगा, और इसी वजह से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एट प्राइमरी लेवल जो पेरेंट्स है वो ये सोच रहे हैं कि इसे आगे जाके कोई दिक्कत हो, उससे अच्छा है कि यहां से ही उसे इंग्लिश सिखा दे, और इसी के कारण ये दिक्कत शुरू हो जाती है। लेकिन हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और इसीलिए जो कहा गया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल, लोअर प्राइमरी तक, 5वीं कक्षा तक 100% रीजनल लैंग्वेज ही होना चाहिए। आपको एक बात और बताऊं, जैसे ये झाकिया जी बता रही थी कि हमारे यहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं। आप जिस भाषा के विस्तार में है, मानो मराठी में है या गुजराती में है या हिंदी बेल्ट में है, जहां भी है, वहां उसी भाषा के कितने फ्लेवर से वो देखिए। एक एरिया से दूसरे एरिया में आप अपने ही रीजन में जाएंगे तो आपको समझ में न आए, इतना वेरिएशन भाषा में होगा। आप अपने ही किसी रिमोट एरिया में जाइए और वहां पर जो बोली जाती है उस भाषा को आप देखिए, तो वो डायलेक्ट हमें नहीं समझ में आएगी। हमारे पास ऐसे विद्यार्थी आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में जो गुजराती ही होते हैं, गुजरात से ही आते हैं, लेकिन उनकी भाषा गुजराती नहीं होती है। तो ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाए तभी हमारी भाषा का कोई प्रॉब्लम आएगा। विद इन द स्टेट हमें ये प्रॉब्लम है और हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम एक रीजन में ये सॉल्व कर रहे हैं तो 2 रीजन में भी हो सकता है, 3 रीजन में भी हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। गुजरात में जो भाषाएं बोली जाती है, गुजराती भाषा, उसके अलग अलग रूप है गुजरात में ही, और भाषा विज्ञान जो पढ़ते हैं वो ये सभी रूप को पढ़ते हैं, तो वाचिक भाषा है। आपके रीजन में भी यही होगा, आप उसके साथ तो काम कर लेते हैं, तो हम बगल के स्टेट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये जो राज्य की रचना हुई है वो भाषा के आधार पर हुई है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन अब जब हम विद इन द स्टेट भाषा का विचार करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि
जैसे गुजराती और मराठी अलग भाषाएं हैं, लेकिन ये भी सीखी जा सकती है। आई है तो एक ही भाषा से। गुजरात में भी हम डांग विस्तार में जाए या वलसाड़ में जाए तो वहां भी ये भाषा जो बोली जाती है उसमें मराठी की छांट है। तो भाषा, मेरी दृष्टि से तो भाषा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब जरूरत होती है तो हर भाषा को हम सीख ही लेते हैं, लेकिन वो जरूरत होनी चाहिए, हमें ये लगना चाहिए कि ये जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि वो बिजनेस में लोग सीख ही लेते हैं, अपना काम बखूबी करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। एकेडमिक में क्या दिक्कत हो सकती है। मैं ये पूछ रहा था कि आपको कुछ ऐसा, ये जो 5+3+3+4 आया है, उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है जो बिल्कुल नया हो? ये है तो उतने ही साल, 12वीं कक्षा तक का ही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो पहले कुछ किसी समय पर नहीं था। आपको ऐसा कुछ लग रहा है? सर, इसमें फैकल्टी एक्सचेंज की बात कही गई है सर, कि आर्ट्स का बच्चा भी साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकता है और साइंस का बच्चा भी आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। ये मुझे थोड़ा लगता है इसमें। आप जो बता रहे हैं वो हायर एजुकेशन का एक एरिया है, NEP 2020। हाँ, फैकल्टी एक्सचेंज। हाँ, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि क्या आपने वो जो स्ट्रक्चर दिया गया है 5+3+3+4 12वीं कक्षा तक का, उसमें ऐसा कुछ दिख रहा है जो पहले कभी था ही नहीं? ऐसी तो कुछ दिख नहीं रहा सर, मुझे तो सेम लग रहा है। ऐसी कुछ उसमें कुछ नया दिख नहीं रहा। हाँ, हायर एजुकेशन में एक बात मैंने जो आपको जो बताई वो मुझे लग रही है। जी। हेलो सर। हाँ जी, कल्याण जी। हाँ सर, इसमें 3 साल की आंगनवाड़ी और 12 साल की स्कूल शिक्षा है। यस, ये जो बात है ये बिल्कुल नहीं है जो कल्याण पाटिल जी बता रहे हैं। आज तक कभी, जिसे हम आंगनवाड़ी कहते हैं, प्राइमरी से पहले की शिक्षा जिसे कहते हैं, बाल मंदिर कहते थे, वो कभी फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा नहीं था। ये पॉलिसी में न्यू जो बात है, नई बात है, ये है। ये स्ट्रक्चर में जो पहले 3 साल है उसे फॉर्मल एजुकेशन का भाग बना दिया गया है। तब तक था, शिक्षा थी, लेकिन उसे ये सिस्टम का भाग माना नहीं जाता था। बाल मंदिर चल रहे थे, आंगनवाड़ी थी, KG था, लेकिन वो बिफोर प्राइमरी का एजुकेशन हमारे सिस्टम का भाग नहीं था। अब ये फॉर्मल हो गया। ये सबसे नई चीज है जिसे ECCE कहते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। इसे फॉर्मलाइज किया गया है। ये सबसे बड़ी बात मुझे लग रही है, क्योंकि आज तक ये शिक्षा थी, शिक्षा के स्वरूप में प्राइवेट क्लासेस चल रहे थे, ये स्कूल्स चल रहे थे, टीचर एजुकेशन में भी था, प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन था, लेकिन ये एजुकेशन का भाग कभी भी फॉर्मल एजुकेशन में नहीं था। अब ये फॉर्मल एजुकेशन में आ गया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और जो बात बताई गई कि ये फैकल्टी एक्सचेंज है, तो ऐसी तो काफी चीजें हैं जो हमें इस पॉलिसी में दिखेगी जो पहले नहीं थी। फैकल्टी एक्सचेंज के रूप में तो एक ये दिया ही गया है, लेकिन आप सोचिए कि जो विषय कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है और फॉरेन में पढ़ रहा है, भारत में नहीं, विदेश में कहीं पर पढ़ाई कर रहा है,
हम किसी के बायोडेटा पढ़ते हैं जो किसी मानो यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि वो डॉक्टर है और संगीतकार है, उसने ये डॉक्टर की डिग्री ली है और संगीत का एक डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। तो हमें थोड़ा ये अजीब लगता है कि ये कैसे होगा। अब हमारे यहाँ भी ये मुमकिन होगा, क्योंकि ये जो एकेडमिक क्रेडिट मिलेगा, एकेडमिक बैंक बनेगा, एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसमें जिसे हम कोर कहते हैं, जो पहले अंजलि जी ने एक बात रखी थी या फिर ये लिटी जी ने बताया था कि ये कैसे होगा एबीसी का। तो मानो आपका एक कोर्स चल रहा है, उस कोर्स में जो भी विद्यार्थी को एंट्री मिलती है उसे कुछ क्रेडिट्स, जिसे कोर क्रेडिट्स कहते हैं, वो लेना है। बाकी के जो क्रेडिट्स है वो ऑप्शनल होंगे, वो आपके यहाँ जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है उसी में से भी ले सकते हैं, कहीं और से भी ले सकते हैं। मानो किसी ने 5 क्रेडिट संगीत के लिए है और आपका सोशल मैनेजमेंट का डिग्री प्रोग्राम चल रहा है, उसमें उसने एडमिशन लिया है, लेकिन 5 क्रेडिट कहीं पर संगीत के लिए है या ड्राइंग से मिले हैं, वो अपने बैंक अकाउंट में जमा है, वो इस कोर्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बैंक से वो निकाल के आपके यहाँ वो जमा करवाएगा, तो वो जो 5 क्रेडिट आपका 100 क्रेडिट का प्रोग्राम है, उसमें से 95 क्रेडिट उसने आपके इंस्टीट्यूट से लिए है, लेकिन 5 क्रेडिट कहीं और से उसने प्राप्त किए हैं और वो अपने बैंक अकाउंट में जमा किए हुए हैं, वो यहाँ पर यूटिलाइज होगा। तो आप उस क्रेडिट को जो मार्कशीट में सब्जेक्ट्स जो आएंगे उसमें शामिल करके देंगे। तो देखिए, अब जो सोशल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है उसमें एक म्यूजिक का भी पोर्शन हो गया। ये मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर अब बनने वाला है। तो जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है वो इस तरीके से काम करेगा। तो हमारे यहाँ कोई डॉक्टर ऐसे भी हमें मिलेंगे जो ड्राइंग का भी कोई एक भाग सीखा हुआ होगा। हमारे यहाँ कोई इंजीनियर ऐसे भी हमें मिलेंगे जिसको कोई डांस का कोई पोर्शन अपने डिग्री के प्रोग्राम में लिया होगा। तो ये जो बातें हैं ये बिल्कुल नई बातें हैं, हमारे यहाँ ऐसा था नहीं। हम स्पेशलाइजेशन में इतने चले गए कि वर्टिकल ही हम जा रहे थे। तो यहाँ हमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने का भी एक प्रावधान ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मिल रहा है। सर, मेरा यहाँ पे एक सवाल है सर, मेरे मन में सवाल है। हाँ जी। कि सोशल साइंस का बच्चा अगर साइंस के सब्जेक्ट चूज करता है या पढ़ता है, तो साइंस का जो फार्मूलाज है सर, जैसे कि मैथमेटिक्स का फार्मूला, फिजिक्स का फार्मूला, केमिस्ट्री का फार्मूला, वो उसको समझ पाएगा क्या सर? एक साइंस का बच्चा सोशल साइंस समझ पाएगा, लेकिन सोशल साइंस का बच्चा साइंस, प्योर साइंस के जो फार्मूलाज है वो पढ़ने में उनको दिक्कत होगी क्या? ऐसा मेरा आपसे सवाल है सर, तो मेरे मन में सवाल है। ये कुछ इसलिए ये प्रश्न हमारे मन में आता है क्योंकि हम वर्टिकल भी सोच सकते हैं। हमने पढ़ाई ही ऐसे की है, मैं जब पढ़ा तब भी ऐसे पढ़ा हूँ, आप पढ़े तब भी ऐसे ही पढ़े हैं। कि मान लो कि आपका जो विषय है उस विषय के अलावा किसी विषय में आपको कुछ आता ही नहीं है, आपने कभी पढ़ाई की ही नहीं, आपने मतलब हमने, मैं हूं, आप है, हम सब ऐसे ही सिस्टम से निकले हुए हैं। तो मैं जैसे पढ़ रहा हूं तो मेरे डिग्री प्रोग्राम में जितने भी पेपर्स है, कोर्सेज है,
मैं उसका ही अभ्यास करूंगा। उसके अलावा मानो मैंने किसी प्रोग्राम की, कोई कोर्स की, कोई पढ़ाई की, तो वो मुझे अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए काम में भी नहीं आएगी और वो उसके लिए मुझे मंजूरी भी नहीं मिलेगी। ये हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो ऐसा है। अब क्या होगा कि कोई बंदा, मान लो कि आपने जैसे उदाहरण दिया कि वो सोशल साइंस में पढ़ाई कर रहा है, अब सोशियोलॉजी में बीए कर रहा है। सोशियोलॉजी में बीए करने के लिए वो 3 या 4 साल का डिग्री कोर्स चुनेगा। अब उसमें उसी बंदे ने बायोलॉजी में उसे इंटरेस्ट है, तो एक कोर्स बायोलॉजी का उसने कर लिया, जो मानो 5 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट का है या 3 क्रेडिट का है। ऐसा कोई एक प्रोग्राम था जो उसने अटेंड किया और वो क्रेडिट उसने अर्जित कर लिए बगल के ही डिपार्टमेंट से। आपका जो सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसी में वो पढ़ रहा है, उसके सामने एक और डिपार्टमेंट है जो बायोलॉजी का है, वहीं से 3 क्रेडिट का एक प्रोग्राम उसने कर लिया है। अब उसको रुचि थी तो उसने कर लिया। किसी एक दूसरे विद्यार्थी ने बगल के डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट से कोई एक ऐसा कोर्स कर लिया है, वो अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में वो जमा करवा देगा और आपको बताएगा कि मेरे पास ये इतने क्रेडिट है जो मैं यूटिलाइज करना चाहता हूं। तो आपको जैसे पहले बताया गया कि मानो आपका जो प्रोग्राम है सोशियोलॉजी का वो 100 क्रेडिट का है और उसके पास 3 क्रेडिट ऑलरेडी उसी यूनिवर्सिटी से या किसी और यूनिवर्सिटी से, जिसे हम वैलिड कहते हैं, वैसे क्रेडिट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा है। तो आपको अब उसे वो 100 क्रेडिट का कोर्स करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो वो 97 क्रेडिट तक पहुंचे तो वो 3 क्रेडिट यहाँ यूटिलाइज करके उसे 100 क्रेडिट का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। हाँ, मैंने पहले जैसे बताया कि जो कोर क्रेडिट्स है, किसी विषय में अभ्यास के जो कोर क्रेडिट्स है वो तो उसे क्लियर करना होगा। जैसे सोशियोलॉजी का आपका 100 क्रेडिट का प्रोग्राम है और उसमें आपने तय किया है कि ये 60 क्रेडिट्स आर मस्ट, ये तो उनको लेना ही होगा। बाकी के 40 है, बाकी के जो 20 है, आपने 80 तय किया है तो बाकी के 20 है, वो उसे ऑल्टरनेटिवली कहीं और से मिलने के चांसेस है। तो जिसे हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं वो अब सही के मायने में इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अब तक ये नहीं हुआ है। अब तक हमने क्या किया है कि कोई एक बंदा को कोई एक कोर्स में जब एडमिशन लेता है तो वो उसके जो सारे प्रोग्राम है, वो कोर्स है, सब्जेक्ट है, वो तो सब उसे पढ़ने ही है, लेकिन क्रेडिट और अपने चॉइस से वो लेता है तो वो एडिशनल होता है। लेकिन अब जाके ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक्टिवेट होगा। अब किसी विद्यार्थी को मानो किसी ने 10 क्रेडिट कहीं से लिए है, डांस में लिए है, वो कथक सीखा है और 10 क्रेडिट उसके पास कोई एक यूनिवर्सिटी के या अपने ही यूनिवर्सिटी के कोई प्रोग्राम से मिले हुए हैं और उसे 100 क्रेडिट डिग्री के लिए चाहिए और वो 90 क्रेडिट अर्जित कर लेता है उस कोर्स में, तो बाकी के 10 वो कथक के उसमें जोड़कर उसे डिग्री मिल सकती है। तो ये अब होगा। हाँ जी, आपने जो अलग अलग प्रश्नों के उत्तर दिए बिल्कुल सटीक और समाधान पूर्ण दिए। मैं यह इतना कहना चाहता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति जो है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। हमारे मन में इसलिए प्रश्न उपस्थित होते हैं कि हम उस वातावरण से नहीं आए सर, जैसे कि आपने ही कहा था, इसलिए हमारे मन में अलग अलग प्रश्न हो रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ इतना ही कि प्राइमरी शिक्षा से जो बच्चा पढ़ता है तो उसके मन में पहले से ही डिजाइन तैयार हो जाता है कि मुझे आगे चलकर क्या करना है।
उसे काफी जानकारी मिलती है। और जब तक वह हायर एजुकेशन में आ जाता है, उच्च शिक्षा क्षेत्र में, तो बिल्कुल उसके मन में एक दिमाग में आ जाता है, चाहे वो समाजशास्त्र लेता हो, तो जैसे कि आपने कहा बायोलॉजी लेना है या फिजिक्स लेना है, तो बिल्कुल वह उसमें यस मिलेगा। लेकिन आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे अभी मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन आपने जो समाधान किया कि बहुत ही सटीक रहा, इसीलिए आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर। थैंक यू। तो अब इसे सफल बनाना हमारा ही काम है। जी हाँ, बिल्कुल सर। बहुत अच्छा सहयोग दिया और मुझे भी काफी कुछ जानने को मिला, और इस दौरान मुझे भी कुछ नए विचार आए, आपसे मिले, तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। HRDC का भी बहुत बहुत धन्यवाद।